अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स। क्रिकेट क्लिनिक के साथ आसिफ अहमद, मुदस्सिर मिर्जा और साइम कश्मीरी आपके साथ हाजिर हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वर्ल्ड कप इज अबाउट टू बिगिन। अभी इस एपिसोड में हम पाकिस्तान का जो पाथ है जो गया है, पर्टिकुलरली अभी एज वी रिकॉर्ड दिस एपिसोड द पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज हैज जस्ट एंडेड। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हैज वाइट वॉश देम 3-0 विन, कन्विंसिंग विंस। हम उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा अपनी राय देंगे। व्हाट implications does it have for us as we go towards the World Cup? वर्ल्ड कप के लिए आर वी प्रिपेयर्ड? व्हाट इज आवर बेस्ट प्लेइंग 11? बिकॉज ये जो तीन गेम्स हैं उसके अंदर आपने तीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखी हैं। तो अगर आज वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो नेदरलैंड के साथ फॉर एग्जांपल, हु डू वी थिंक आर आवर बेस्ट 11 और उनका क्या ऑर्डर होना चाहिए? And then, of course, the big news of today that I'm sure all of you would have heard is that the Pakistan government has put out an announcement saying कि पाकिस्तान 15 फरवरी को जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम स्केड्यूल था, the government has decided to boycott that. तो उसकी क्या implications हैं? Is this the right call? Do we as Pakistani fans support it? If not, why? If we do, why? And इसकी क्या repercussions होंगी, क्या implications होंगी for Pakistan in this World Cup? And if there are any long-term implications as well. उसको हम टुवर्ड्स द एंड बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अ पैनलिस्ट। आसिफ और मुदस्सिर, आप में से कोई लीड लेना चाहेगा? पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज 3-0। द नेसेयर्स वुड से कि उनकी पूरी टीम नहीं थी, सम की प्लेयर्स वर मिसिंग, ऑल्दो द लास्ट टू गेम्स आई वुड आर्ग्यू मोर और लेस द 80-90% ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड वाज स्टिल देयर। क्या कहेंगे आप इस विन के बारे में, इस सीरीज विन के बारे में? Listener? Yeah. Yeah, you go ahead. Chalo, yeah, I'll go very briefly. Just assalamu alaikum, everybody. It's been a while, but I think you'll be seeing a lot more of us with the World Cup coming, or maybe not if we don't play. Who knows? Um, but we talked about this quite a bit within the last year that Pakistan, in my mind, has had the dream build up to the World Cup in the sense that over the course of 2025, we've had 30 to 35 plus T20s, albeit against quote unquote lesser opposition, to build our combination, to try people and, see what works, see what doesn't work, change the combination here and there and build yourself up. And one of the critiques all along has been that you're playing competition that is not as good as what you may face in the World Cup, whether it's a New Zealand team or a B Sri Lanka team or Afghanistan and things of that nature. But you sometimes need that in order to find your best combination. This was a good stern test. Obviously, it is Australia, and people may say B team, C team, 80%, whatever. Mudassir will tell you here in a bit. They're missing three players. That's it. This is still a very good team. And let's be honest, we've lost series against the C team of New Zealand when they came last year. So beating Australia at any point, at any time, is a big deal. It has not happened from Pakistan standpoint in the T20 level, I think, for about 7 or 8 years. So that's a good thing. This is exactly what you want going into the World Cup. I think Pakistan, we can talk about individual performances, and we will, I think, mere nazar mein, the things that I've said, people talk about who needs to be dropped, who needs to be picked up. Remember, we had a very successful ODI series in Australia just a year or two ago where we beat them after a long time. The common thread in that series and this series has been Saim Ayub. But I would argue that the biggest thing that I've seen, and I want to say kudos to all three of us because we have fought years ago against this whole Babar Rizwan opening partnership. And you will remember the three of us sat there with Misbah ul Haq at a table arguing against this approach, saying, why do we have these two as openers? You're not raising the ceiling. And he said, would you rather be 45 for no loss after the power play or 65 for three? And we said 65 for three. He said, no, be conservative. So what Pakistan has done, and credit goes to the PCB that they've tried different people. We've got a combination. And, Saim, I'm sure will be the first to admit that our captain, who was woefully out of form, has rediscovered himself and has now put himself in a position where he is taking the most advantage of the power play and doing so against spinning bowlers in conditions that will likely suit him. That, I think, has brought a new swagger to this team, a new sense of confidence that you have a captain who's contributing positively. Everything is kind of falling in place. So I think we're ready. I think we're ready, to take on the World Cup. What happens, happens. We'll see. If we lose, there'll be plenty of time to critique it. But,
through this process that has been really, really well. And I do think there are some issues with the process in the sense that we tried some people, and then when the final team was brought up, it's sort of like, I'm not going to use a basketball analogy. Basketball is breaking my heart too much these days. In football, if you have a drive that goes the whole time and at the 1 yard line, you kind of fumble. The PCB is panicking a little bit and throwing a few names in that, like Anafe or Babar, the Shadab question was a question which I think has been answered, but it was still the process by which he was brought in. People may question it, but at the end of the day, I think you're going to go in with your best possible 11, almost your best possible 11, and we'll talk about that in a little detail here in a bit. I think we're ready. We're in a great frame of mind. You cannot go into a World Cup with a better frame of mind than beating Australia 3-0, being ready to go. सर आपको रिसेंट पास्ट के अंदर कोई ऐसी याद रहती है कि हम स्पिन डिपार्टमेंट में स्पेशली इतने अमेजिंग हमारी परफॉर्मेंस से स्टार्ट हो गई हो? इट टेक्स मी, आई नो द सैंपल साइज इज स्मॉल, बट मुझे तो आप वो सईद अजमल और शाहिद अफरीदी और हफीज वाला थोड़ी सी वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। आपको भी उस तरह की वाइब्स आ Please, रही हैं या yes. यू थिंक इट्स काइंड ऑफ? एक्चुअली ये टेस्ट से शुरू हुआ है, और आई थिंक फ्यूचर में लगता है ये कि अगले 10 साल तक या आगे भी अब होम सीरीज चाहे वनडे हो T20 टेस्ट, आई थिंक स्पिन में हम ज्यादा जीत रहे हैं 90% में भी। तो सबसे जो लोग बात भूल जाते हैं कि स्पिन में अगेन आई नो फॉर्मेट का फर्क है, मगर देयर इज अ लिंक कि वो जो हर टेस्ट मैच में रिजवान आगा और सऊद स्पिन के अगेंस्ट कंफर्टेबल थे। दे आर द हाईएस्ट रन गेटर्स एंड दे प्ले लाइक अ काउंटर इनिंग्स, खासतौर पर आगा और रिजवान। तो आई एम नॉट सरप्राइज। तो ये कंडीशंस के हिसाब से टीम काफी अच्छी है, क्योंकि श्रीलंका में टूर्नामेंट होगा। और बॉलिंग अटैक तो बल्कि ये जो आफरीदी और हफीज और अजमल का था, ये उसके तकरीबन बराबर ही है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गए हैं स्पिन के। अबरार रन नहीं दे रहा है, सब वो नवाज और साइम विकेट ले रहे हैं। शादाब का है कि ठीक है, अभी आई थिंक ही बोल्ड बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो काफी टीम का बैलेंस बेहतर हुआ है, और 3-0 इज अ बिग डील। और दूसरी चीज जो हर कोई मिस कर रहा है, दीज आर बैड पिचेस, कि ऑस्ट्रेलिया से 100 रन नहीं बन रहे और इन्होंने 200 क्रॉस किया उस पिच पे। तो इसका मतलब है कि दे आर बॉलिंग स्पिन वेल एंड दे आर प्लेइंग स्पिन गुड टू। तो आई थिंक वी सी दिस इज अ बिग इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द लास्ट वर्ल्ड कप। जब हम पिछले वर्ल्ड कप में गए थे, तो 5 खिलाड़ी आपस में बात नहीं कर रहे थे, सारे आउट ऑफ फॉर्म थे। वो खैर हम निक पिक कर सकते हैं कि एक दो प्लेयर्स, वो खैर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि मुझे लगता है एक आध प्लेयर का है मसला अभी भी, मगर ओवरऑल आई थिंक टीम इज बेटर जेल्ड एंड बेटर लुकिंग देन द लास्ट वर्ल्ड कप। यार अगर आप ओवरऑल देखो ना पिछले आई डोंट नो 5-6 मंथ्स, मैं क्विकली अपने व्यूअर्स को रिमाइंड कर दूं, वी बीट साउथ अफ्रीका, जो सीरीज हम जीत चुके हैं। वी बीट वेस्ट इंडीज, वी बेसिकली वन द ट्राई नेशन सीरीज, we were the finalists in the Asia Cup, and we have now beaten Australia 3-0. Yeah, it's a big right? deal. So it is, जो भी आप कह लो कि यार उनमें से कुछ जो थी, साउथ अफ्रीका अपनी फुल टीम के साथ नहीं खेल रहा था, या ऑस्ट्रेलिया, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि टीम ने तो इम्प्रूवमेंट दिखाई है। दी ओनली स्मॉल लिटिल विश आई हैड वाज कि यार हम 3 टॉसेस जीते, because ultimately for me the World Cup matters more than the series. I would have liked us to chase in the last game, जबकि सीरीज आज करना चाहिए था, मगर पता है होना कुछ नहीं था। वो आउट, वो मारने के चक्कर में वो इतने पे आउट हो जाते, 125-25 पे चेज भी हो जाता, मगर आज करना चाहिए था। टॉस जीत, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपको चांस, आपको चेस करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप में दे विल कम अ टाइम जब आप टॉस हारोगे, तो उसमें मुझे तो समहाउ एक नर्वसनेस ही होती है जब हम चेस कर रहे होते हैं। ऑल्दो आई नो कि रिसेंटली थोड़ा सा बेहतर हो गया है हमारा चेजिंग रिकॉर्ड भी, बट आई एम ऑलवेज मोर कंफर्टेबल पुटिंग ऑन अ टारगेट एंड देन हैविंग स्पिनर्स बेसिकली डिफेंड। तो वो थोड़ा सा एक आंसर हो जाता, बट अगेन ठीक है, वो नहीं हो पाया। कन्विंसिंग विंस, जो फर्स्ट हम जो जीते थे, इट वाज 20 और रन्स, ऑल्दो वो भी लाइक मिडवे थ्रू द ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स द राइटिंग वाज ऑन द वॉल कि हमने जीतना है। बट और उस पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ की, तो वो वहां के मीडिया जो आकाश चोपड़ा थे उसकी तंज करने लग गया कि जी आपने उनकी बी टीम को 20 रन से हरा दिया, तो क्या बात है। तो उसके बाद तकरीबन 90 रन से सेकंड में हराया, और मोर देन 100 रन से लास्ट को हराया। इट वाज जस्ट कंप्लीटली डोमिनेशन, राइट। तो भाई जो मॉडर्न आजकल दुनिया में कहीं पे भी क्रिकेट हो रही है ना, 3 फॉर्मेट की वजह से बेस्ट 11 इज इम्पॉसिबल। और अच्छी टीमें कभी भी बेस्ट
11 खिलाती नहीं है। अभी हम्म, न्यूजीलैंड की भी जो टीम थी वो देवर एक्सपेरिमेंटिंग, और इंडिया से वो अच्छा लड़े हैं, वो ओडीआई हरा दिया, T20 में हारे हैं मगर दे प्लेड गुड। इसी तरह हम्म, ऑस्ट्रेलिया ने जो आज के मैच में तो फिर भी 8-9 प्लेयर थे, मगर 3 डेब्यू कराए हैं इन्होंने इस सीरीज में, विच इज ओके। ये हमारा हमारा ही ऑब्सेशन था पहले के 11 होने चाहिए और वही 11 खेलते रहे। आई डिसएग्री विद दिस। आई हम्म, थिंक टीम्स improve ओनली के व्हेन यू कीप रोटेटिंग 2-3 प्लेयर्स इन एवरी गेम, और सारी टीमें यही करते हैं। मेरा हम्म, नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई बी टीम आई है पिछले 1-2 साल में। साउथ हम्म, अफ्रीका के भी वो लोगों को प्लेयर नहीं पता, वही प्लेयर अच्छे हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया से खेल के आए थे जितने जो ये ब्रेविस और स्टब्स, दे एंड दे आर इन द वर्ल्ड कप टीम। अगर तुम देखो तो वही लोग हम्म। सारे वर्ल्ड कप में जो Hmm. पाकिस्तान आए। अच्छा, ओवरऑल जब आप एशिया कप में जा रहे थे उसमें दे वर नंबर ऑफ प्लेयर्स हु वर काइंड ऑफ कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स। हम बहुत रिलाई कर रहे थे फरहान के ऊपर कि वो अच्छा हमें टारगेट दे देगा स्टार्ट, या साइम भी बड़ा आउट ऑफ फॉर्म था। या फखर जमान वन डाउन आके बना देता था। पीछे वो गूगल वाला काफी स्ट्रगल कर रहे थे। उसकी निस्बत आपको क्या लगता है, लाइक इस जो सीरीज हुई थी या अभी जो रिसेंट पास्ट के अंदर हमारे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आप कहो कि वो वीक लिंक्स कम नजर आ रहे हैं मुझे? आई नो बाबर का एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क, विल बी टॉकिंग अबाउट हिम, बट फरहान हैजंट स्कोर्ड मेनी इन दिस सीरीज। Hmm. बट कोई ऐसा हमें प्लेयर नहीं लग रहा जिसको हम कैरी करके लेके जा रहे हैं कि यार क्या बनेगा उसका। अगर एक नहीं चलता दूसरा चल जाता है। एक में उस्मान खान ने बहुत बड़ी अच्छी हाफ सेंचुरी मारी, उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था। सलमान आगा, ever since that 45 of 12 ये जो श्रीलंका में किया था, he's batting at a completely different pitch Hmm. it seems. तो overall positives to be taken in batting as well. I know batting थोड़ी सी हमारी as compared to bowling पे ज्यादा जिक्र होता है, लोग कहते हैं कि हम very bowling dominated, but batting भी overall अगर आप देखो 200 आज बनाया है, almost 200 आपने सेकंड इनिंग में बनाया। तो बैटिंग के बारे में ओवरऑल आर यू हैप्पी विद आवर बैटिंग या परफॉर्मेंस, या क्या 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 कहोगे आप दोनों? हाँ यार, एक और चीज बड़ी मजेदार है जो मैंने आज तक पाकिस्तानी क्रिकेट में तो नहीं देखी। पहले मैच में वो साहबजादा आउट हुआ था 0 पे पहली बॉल पे, ठीक है, हम्म, सॉफ्ट डिसमिसल। साइम ने वो जिस तरह इंडिया में ईशान ने छक्का मारा था ना, साइम ने वैसे ही छक्का मारा है तीसरी बॉल पे, 0 हम्म, पे। हम्म, फिर उसी तरह फिर एक पहले आगा ने मेरे ख्याल से काफी दो दो मैचों में पहली बॉल पे उसने भी बाउंड्री मारी है विकेट गिरने के बाद। हम्म, तो इट्स अ पॉजिटिव क्रिकेट ये लोग खेल। आई हम्म, थिंक जो बिगेस्ट जो Yeah. बैटिंग में अभी जो बेहतर लग रही है ना, वो साइम थोड़ा रन कर रहा है, आगा कर रहा है, और पीछे हमारी टेल बहुत ज्यादा लंबी है। और सारे हम्म, फॉर्म में नवाज की तो खैर बहुत ही अच्छी बॉल आ रही थी, और राणा के। हम्म। अब शादाब ने भी आज अच्छी बैटिंग कर दी है, शादाब उस्मान अगर वो खान। 2 रन और बना लेता तो हाँ, सेकंड फास्टेस्ट हाफ एग्जैक्टली। सेंचुरी हो जाती है पाकिस्तान की। फिर वो 50 हो नाफे जाती है भी हाँ जितना खेला है, नाफी बहुत अच्छा लग रहा है, हर किसी के बल्ले बॉल आ रही है, नो बडी स्ट्रगलिंग। हम्म, बाबर जो आज जो रन किए हैं, दैट्स द बेस्ट ही कैन डू। तो हम्म। वो आर्ग्यू लोग कर सकते हैं, मगर ये ओवरऑल टीम की बैटिंग लुक्स बेटर डेफिनेटली। आसिफ आप क्या कहोगे? So this is the thing I think, which is such a big luxury, is कि तीनों matches में आप देखो we have not had a successful opening partnership, right? हम्म, And हम्म, उसके बावजूद they did not take their foot off the accelerator. And हम्म, बल्कि आज we lost an opener in Fakhr and we lost Agha, and still या, the acceleration kept happening. That's the key, is that in this format you almost don't even need an anchor. I mean, Barber हम्म, played an anchor role today, but you don't need it. You just keep, especially in the power play, you run, you हम्म, push, you push, you push, and you push. And to lose early wickets, just let him miss bucket. I thought we were 60 for three, 70 for three. We still scored 200. This is what happens when you have depth in your batting and everyone is fearless and everyone is playing for the team, not for themselves. That's what you see. So I think it's great, and we're not reliant on one person. Ye nahi कि Abhishek out and then you're in trouble, right? Or हम्म, anyone can get out, and the next guy's going to step in and just carry on. It's been a long time since we've had that in Pakistan, and I love it. या Anyone can come in and lift up and the I would torch. argue that sometimes losing wickets is a blessing in disguise. If the person is struggling and eating up too many deliveries, या तो वो तो ज्यादा अच्छा है। दैट्स वर्स। एक हाँ, कि आप बाबर आउट हो गया 2 for 5, तो एक तरह से आप देखो जो आया उसके बाद नीचे उस्मान खान ने एक्सेलेरेट कर दिया। समटाइम्स आपको ओवरऑल देखना होता है कि यार नहीं लग रही तो हिट आउट एंड जस्ट गेट आउट देन। या मगर एक मजे की बात देखो, अभी जितने फाइनल होते हैं ना T20 के, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जो हम्म, स्टोक्स ने टेस्ट इनिंग्स खेली थी, याद है? फिर हम्म, जो वेस्ट इंडीज में इंडिया जीता है,
तो कोहली स्टार्टेड स्लो कि वो बाबर की तरह ही बस बिकॉज विकेट्स गिरे जा रही थी। तो जब प्रेशर पड़ता है ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक एंकर की जगह हमेशा होती है, क्योंकि इंग्लैंड ने तो सारे एंकर निकाल दिए ना, तो वो हर हाँ वर्ल्ड कप में वो 90 पे धड़ाम हो जाते हैं। उनका सबसे अच्छा एंकर था वो जो लेफ्टी था, डेविड मिलान। वो जब से रिटायर हुआ है ना, वो उनके पहिए सारे निकल गए, ना रूट है ना स्टोक्स है। तो एक एंकर की जगह होती है ना, आगा कैन प्ले आगा बन सकता है। बोथ इवन गेम। इंडिया का कोई एंकर नहीं है अगर आप देखो। इंडिया में जो एशिया कप में देखो तो वो अटक गया था, क्या नाम है आपका, जो लेफ्टी था, उसने बड़े जबरदस्त इनिंग खेली थी। तिलक वर्मा वर्मा। तिलक 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 वर्मा, तिलक हाँ। वर्मा ने, तिलक हाँ। वर्मा। अभिषेक को तो राणा ने निकाल दिया था, वो बाकी की टीम तो घुमा रही थी, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो तिलक वर्मा ने थोड़ा रोका है, फिर जाके जिताया है। तो फाइनल में तुम देखना हमेशा ना फंसते हैं, और एक कोई ऐसा प्लेयर तो होना चाहिए जो खड़ा रहे और ही कैन एक्सेलरेट। तो जगह होती है थोड़ी अच्छे एंकर की। अच्छा, एक बात जो आज कैप्टन वाज सेइंग, आगा वाज सेइंग एट द यू नो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जब मैच खत्म हुआ, कि भी किस तरह, हाउ डू यू फाइंड द कैप्टनसी रोल। सो ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेड कि यार इट्स वेरी टफ जॉब, बिकॉज मेरे पास इतने ज्यादा स्पिन के ऑप्शंस हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किससे कराऊं किससे ना कराऊं, यू नो। आज जिस तरह आप देखो कि साइम ने कोई ज्यादा सामने नहीं ओवर्स की। नहीं कराए, यू नो। तो वी आर काइंड ऑफ स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। और उसमें एक चीज ये भी अच्छी है कि नॉट ऑल स्पिनर्स वुड बी परफॉर्मिंग, यू नो, ऑन ऑल डेज। समबडी माइट हैव एन ऑफ डे। तो वो फिर हमारे पास है कि हम उनको बैलेंस, एंड ऑल्सो प्लेइंग द मैचअप्स, कि अगर आपके पास अगर लेफ्टी लगा हुआ है तो आप ऑफ स्पिनर डाल दो, एक वो चीज आ जाती है। बट तो मगर वही तो क्रिटिसिज्म था जब शादाब वापस आया है ना, तो सबसे मैं हम लोग भी यही कह रहे थे Yes. यार, इतने स्पिनर्स हैं कि बारी नहीं आएगी। तो और नवाज इतनी अच्छी फॉर्म में है कि शादाब की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब वो है कि हमने, क्योंकि मिडिल ऑर्डर है ही नहीं कोई, तो शादाब ने आज रन कर दिए तो ही फिल इन फॉर 5-6। अगर वो ऐसे खेलता रहे तो ठीक है। तो क्रिटिसिज्म यही था कि यार शादाब, अगर टीम बैलेंस में देखो तो या तो आप नवाज को निकालो या शादाब को निकालो, दोनों खेलने से फिर यू आर प्लेइंग वन बैट्समैन लेस। अगर हाँ, अगर ये स्कोर करते रहे तो इट विल वर्क आउट, मगर दैट वाज द होल पॉइंट के टू मैनी स्पिनर्स को आप पूरे ही नहीं, आसान में बॉल ही नहीं की उसने। नहीं, वो आप सही कह रहे हो। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप, आई नो शादाब आपको टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन नहीं लगता, ही इज नॉट प्लीजिंग ऑन द आई, ही इज नॉट ऑर्थोडॉक्स, लेकिन अगर आप उसके वैसे उसके स्टैट्स, उसके नंबर देखो, तो आई थिंक मिडिल ऑर्डर के अंदर, आई डोंट थिंक करंट हमारे सर्किट के अंदर उस जैसा कोई आपको मिलेगा। आर्ग्यूबली यस, अब्दुल समद हो सकता है, अब्दुल समद यार को आपने ट्राई नहीं किया। माज माज था। हाँ, माज था, अगेन ही इज माज। अ गुड हसन बॉलर टू। नवाज भी था, हसन नवाज हसन भी था। नवाज तो बैट्समैन था यार, उसको खैर। हाँ, खैर मैं ये एज तो ए मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बैट्समैन की बात कर बात रहा कर है। रहा हूँ। तो या मुझे हाँ ये है कि उसकी आप बॉलिंग निकाल भी दो, इवन दो बॉलिंग में आई वुड आर्ग्यू एज वेल, आज आप जो कर उसने रहा है, वो भी बोल्ड कर मारे, रहा है। बोल उसकी वो फुल टॉसेस खत्म हो गई हैं, यू नो। वो पहले तो फुल टॉस बॉलर बन गया था वो, या वो लॉन्ग हॉप देना शुरू कर दी थी उसने। तो आई नो इट विल probably टेक यू मोर मैचेस टू गेन सम ऑफ द कॉन्फिडेंस दैट इज या लॉस्ट, बट मुझे वो थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गया उसमें इसकी। सो आई एम काइंड ऑफ हैप्पी विद हैविंग हिम। बट ओवरऑल उस्मान खान के बारे में, आप उस्मान तारिक के बारे में आप क्या कहेंगे? आई नो उसके एक्शन के बारे में फिर बातें स्टार्ट हो गई थी। Do you see him fitting in? I would personally love to have both Abrar and Usman Tariq fit in the playing 11 as we did in game number 2. तो क्या आपको लग रहा है कि हम उस्मान तारिक अबरार दोनों को खिला सकते हैं? यार मेरा तो ख्याल या खिलाना आई चाहिए थिंक आई टफ टफ गेम में, जिस तरह आखिर इंडिया वाला तो पहला मैच तो बॉयकॉट कर रहे हैं, आगे कभी खेले तो आई थिंक, क्योंकि जो टीमें स्पिन अच्छा खेलती हैं वो फंस। यार मैंने अभी जब अभी आईएलटी में फाइनल हुआ था, ये मेरा अपना ख्याल है कि पोलार्ड जो है ना इज वन ऑफ द बेस्ट हिटर ऑफ स्पिन ऑल्सो। पोलार्ड के सामने कोई भी आ जाए वो 3-3 छक्के मार देता है यार वो। तो वो नहीं पिक हो रहा था वो बल्कि वो उसको उस्मान खान से हंसी मजाक हो रहा था, पोलार्ड नहीं पिक कर पा रहा था। और मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा उसका मसला क्या है। अगर तुम उसका वो जो अंडर आर्म तो वो नहीं कर रहा, क्योंकि उससे नीचे जमान खान और वो श्रीलंकन बॉलर्स मलिंगा वगैरह सब नीचे थे। हाँ थोड़ा सा हाथ बैंड है तो आई डोंट नो, हल्का फुल्का अलाउड है तो वो क्लियर भी हो चुका है। मुझे लगता है वो जो रुक रहा है ना उससे बैट्समैन पागल हो जाते हैं सारे के, दे नीड टू नहीं, जस्ट, रुकने का भी ऐसा कोई ऑकवर्ड है। रूल नहीं है। आई थिंक नहीं द रूल नहीं है। कंफ्यूजन लाए जो कि Yeah. ऑस्ट्रेलियन मीडिया में, फॉक्स न्यूज भी दिखा रहा था कि उन्होंने उसकी पिक्चर दिखा के उसके बैंड के ऊपर सर्कल किया था कि देखो इतना उसका बैंड है हाफ ही नहीं। बैंड है।
नहीं तो लोगों को अवेयरनेस नहीं Yeah. है कि रूल्स क्या है। रूल्स ये नहीं कहते कि आप बैंड आर्म से करा नहीं सकते। रूल्स ये है कि आप अगर आपने बैंड कर दिया तो ये ना तो करो, आप ऐसे स्ट्रेटन करो। नहीं कर सकते, स्ट्रेटन नहीं कर हाँ, सकते। अगर आपने बैंड रखा है और बैंड में ही करा दिया है तो दैट्स परफेक्टली लीगल। तो वो जो उसने उसने वीडियो में भी दिखाया है कि यार मेरा सीधा होता ही नहीं है, आफ्टर अ सर्टेन व्हाइल दिस इज द मैक्सिमम आई कैन गो बिकॉज ऑफ द वे माय आर्म इज, उसके जो दो जो उसके नी पॉइंट्स हैं। तो अब आई नो एक चीज आ रही है कुछ मीडिया के अंदर भी कि शायद वो उस्मान तारिक को इंडिया का तो मैच होगा नहीं, मे बी वो सुपर सिक्सेस के लिए रखना चाह रहे हैं। बट आई वुड आर्ग्यू नाउ कि अब आपको क्या पता है कि सुपर सिक्सेस हो के ना हो। इंडिया से आपने 2 पॉइंट्स, हाँ. you let go of those 2 points. Not only that, but your net run rate is going to take a big hit, right? जो कि रूल्स ये हैं कि हमें वो जो 20 ओवर्स जो Yeah. हमारे yeah, इंडिया के गेम में थे वो सारे काउंट होंगे हमारे अगेंस्ट, सो आवर नेट रन रेट इज गोना it'll टेक be अ बिग 0 हिट, runs. which would then basically mean that we would not only need to beat these other lower ranked teams, the likes of Netherlands and USA and Namibia, but we'll have to completely dominate against them. Given that, interestingly, India is playing its last game of our pool after we have already finished our 3 games. They'll be playing Netherlands. So, अगर इंडिया कोई मस्ती करना चाहे कि यार पाकिस्तान को निकालो, दे कैन दे कैन मैनिपुलेट दैट गेम इन सच अ वे कि यार हम एक छोटे मार्जिन से नेदरलैंड से हार जाते हैं, आई मीन नेदरलैंड से इस तरीके से हार जाते हैं कि हम भी चले जाएं और नेदरलैंड भी चला जाए नेट रन रेट के ऊपर। तो उसके लिए अब जरूरी नहीं हो गया कि हम उस्मान तारिक को शुरू से ही खिलाएं एंड फॉरगेट अबाउट ये चीज के यार उस पे कॉल Plus, हो जाएगा नहीं ये कॉल हो जाएगा। कंडीशंस Yeah, वो अगर दोनों खेल सकते हैं तो वो इधर ही खेल सकते हैं ना. तो और वो जो वैल्यू उस्मान जो लाएगा ना, और अबरार रन नहीं दे रहे, विकेट भी लेते हैं, तो इट्स मोर देन प्लेइंग एन एक्स्ट्रा बैट्समैन. मेरा तो ख्याल है कि दे बोथ कैन प्ले, और दिस इज द बेस्ट टाइम. अगर वो स्पिन हो रही है विकेट तो yeah. दे बोथ शुड प्ले. अच्छा। Because he's been analyzed twice. He's been analyzed twice, and he says he's okay. We say he's okay. That's fine. We have a pecking order for our spinners. To answer your question earlier about Shadab, which to me you have Abrar and Usman Tariq kind of equal, 1 and 2 or 2 and 1. It doesn't matter. And then you have Nawaz as number 3. I will put Saim as number 4 and Shadab as number 5. Honestly, I think I would look, the put Simon and PCB Shadab almost the same. has been trying. Yeah. Yeah, but I mean, so look, the bottom line is the PCB in this Australia series, we've had this process of trying all your good players and let the cream rise to the top. There's no question that the PCB has tried to manipulate a little bit and put Shadab and Babar on the top and hope that they float. And for Yeah. Shadab, it's worked well. For Babar, it's questionable. And that's okay. They're wanting Shadab to get as much practice as he can, which is fine. But I would argue that when the really comes down to it, Shadab should not be an option ahead of Nawaz. Nawaz has been far superior, and Shadab is look. I think Shadab is doing well enough, be in the team or seats and stuff. And you want Shadab, that's fine. He should be clearly your third or fourth option. Your fourth option, I think, after Tariq and Abrar and Nawaz. I think, and look, it's all a question of I always say I want match winners in the team. That's why no matter what's happening, I want Fakhr in the team, because we know he can win. We know that I want Simon in the team. Everyone's saying, oh, he was out of form, drop him. We know what he's capable of doing single-handedly. He can win matches. I think that Shadab is a single-handed match winner. I think he was once. He may be getting there again. So I'm not saying that if he doesn't bowl, usko include na kare. Let him play. But I think his value is much more as a batsman and a fielder, energy, all that other stuff. Bowling, you can, but I think he should be much lower in the pecking order in terms of bowling. Again, I understand for this Australia series, there's practice, get his eye in, get him some practice, that's fine. And he did well in Sri Lanka as well. So I'm not saying dismiss it altogether, but ahead of him in the bowling pecking order. आसिफ, मुझे लगता है थोड़ी सी बफरिंग हो रही है आपके एंड पे। मुदस्सर, आपको भी फील हो रहा है? आसिफ भाई की थोड़ी आसिफ की थोड़ी सी, आई थिंक इंटरनेट की थोड़ी सी बफरिंग हो रही है। So we'll try to see what we can do about it. वो पिछले साल से जो अभी कम बैक हुए ना दोनों के, नवाज और शदाब दोनों के, नवाज का लास्ट ईयर और शदाब का भी, शदाब के स्टैट्स ना नवाज से बेहतर है ओवरऑल. मगर एक था कि जब जब दोनों खेलते हैं ना साथ, तो नवाज को मौका नहीं मिलता था. तो नवाज पहली दफा खेला था बगैर शदाब के, तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया उसके. तुम स्टैट्स में कल देख रहा था फिर, इट्स अनबिलीवेबल. ही इज लाइक
मैन ऑफ द सीरीज 4 times इन 1 year, ठीक है। फिर हम्म, आज फिर मैन ऑफ द मैच बना है, पता नहीं 6-7 उसने चार उसके मैन ऑफ द मैच हो गए हैं। तो उसने हम्म, सारे जो 10 साल के जो हम्म, सारे रिकॉर्ड थे ना, उसने 1 साल में बना दिए। तो इट्स अ हम्म, गुड प्रॉब्लम टू हैव पर्सनली, मुझे लगता है कि Hmm. और नवाज की बैट पे बड़ी जबरदस्त बॉल आ रही है, जो आजकल जो हम्म, वो फेंक रहा है ना लंबे लंबे। हम्म। तो Hmm. इट्स आई थिंक टीम के लिए अच्छा है। तो नो बडी एक्सपेक्टेड के, वरना सभी हम लोग मजाक में बोलते हैं नवाज को इसलिए लिया है कि जैसे ही शादाब आएगा तो नवाज विल गो आउट, मगर वो नहीं, फंस नवाज तो गया। द मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर था और उसको या उन्होंने रखा है उसको। इट्स अनबिलीवेबल, जो स्टैट्स तुम देखना, जस्ट इनक्रेडिबल। Hmm. अच्छा, हाउ हाईएस्ट अबाउट वी विकेट हाईएस्ट विकेट टेकर लास्ट ईयर। बिल्कुल बिल्कुल, हाउ डू वी मूव टू अ सेकंड पॉइंट जो हमने एजेंडा में था, विच इज व्हाई डोंट वी कम अप विद आवर बेस्ट 11? अगर कल जिस तरह मैच है नेदरलैंड्स के अगेंस्ट सपोजिंग, एंड आई नो कि हम एक और इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे बिफोर द नेदरलैंड्स गेम, बट अगर अभी आपने अनाउंस करनी हो, अगर आप सिलेक्टर हो, तो क्या आप बेस्ट 11 खिलाओगे? डू यू हैव लेट्स स्टार्ट विद द ओपनर्स, वुड यू स्टार्ट विद फरहान एंड साइम, और फिर नीचे आते जाते क्या ख्याल है दोनों का? फरहान एंड साइम, Yes. ओके, फरहान एंड Yes. साइम। नंबर I think 3 top आगा। three we agree, and हाँ, three is Agha. टॉप 3 आगा, Yes. आगा हैज बेसिकली लॉक्ड इन 3। तो बात अब 4 की आ जाती है। 4 इज बाबर आजम द राइट फिट फॉर 4? आई डोंट थिंक, आई मीन So मैं मेरा ओपिनियन, I don't have Babar Azam in my 11. टीम में ही नहीं होने Just आई to be डोंट हैव clear. हिम इन माय 11 फॉर एज वेल। टेम्पररी, फॉर टाइम बीइंग। ये मैं नहीं कह रहा कि बाबर कैरियर खत्म हो गया, नोबडी सेइंग तो दैट। नंबर 4 के अंदर मेरे मेरे बुक्स में या आप फखर के साथ जा सकते हो या आप नाफे के साथ जा सकते हो, यू कैन पिक। फखर के पास ज्यादा So are एक्सपीरियंस you है। choosing Nafi over Usman? नहीं, उस्मान को तो मैं रख रहा हूँ, उस्मान को मैं रख रहा हूँ टीम में। समझ No, गया, no, Usman नाफे एज अ spinner. बैट्समैन, I mean, नाफे एज अ हाँ wicket हाँ, keeper, बैट्समैन। wicket keeper, wicket keep. Oh, you're विकेट taking कीपर Nafi आई as a थिंक, batsman. हाँ, मैं नाफे को एज अ बैट्समैन भी कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर जरूरी नहीं है, जिस तरह आपके Acha. श्रीलंका या में नाफे और उस्मान दोनों खेले थे। Okay. एक बात बताऊं, Okay. नाफे Okay. बैट्समैन ही है, ना उसने डोमेस्टिक खेली हुई है, ना उसने कीपिंग की हुई है। इट इज गोना बी हम्म, डिजास्टर। वो साहबजादा अक्लमंद था, उसने कहा मैं नहीं कर रहा। तो नाफे भी ना यार, जबरदस्ती है कीपर है, ही इज नॉट अ कीपर। पीसीबी ने खाम खा उनकी जो स्क्वाड के अंदर हाँ, फरहान के आगे विकेट कीपर लगाया नहीं हुआ है। कीपर वो, उन्होंने एक दफा भी नहीं इसको दिया। आज भी देख लो, आज किसने कीपिंग की नहीं। है? नाफे ने की है ना। नाफे पीएसएल में ग्लैडिएटर हाँ, में भी कीपिंग नहीं करता यार। नाफे इज नॉट अ कीपर, ये नहीं नहीं, डिजास्टर मैं होगा वो नाफे। but he क्वेश्चन was ना कर not रहा हूँ, लेकिन terrible. नो उसको आई नो, मगर ही इज नॉट अ कीपर, उसने क्रिकेट ही नहीं खेली हाँ, हुई यार। I know. No, no, बिल्कुल, आज no. आज The वैसे keeper बुरी has नहीं to be की, the best हाँ keeper हाँ, possible. आज स्टंपिंग भी हाँ, उसने अच्छी की है, कोई खास। हाँ. इनफैक्ट आई मीन उस्मान भी अच्छी कर रहा है कीपिंग। एक उससे कैच ड्रॉप हो गया था वो मिच मार्श का लास्ट गेम में, बट ओवरऑल। सो नंबर 4 के ऊपर या मेरे बुक्स में या I आप have फखर Fakhar. के साथ जा सकते फखर हो के या, नाफे। हाँ, फखर और नाफे में से एक है। Okay. तो वो आप Okay. डिसाइड कर सकते हो। फिर 5 के ऊपर आपका आ जाता है उस्मान खान, मेरे मेरे हिसाब Yes. से। ठीक है, Maybe. उसने जो बनाई है 50, और वो स्पिन को अच्छा खेल रहा है। एंड मोस्ट लाइकली 5 आपको ऐसा चाहिए जो कर सके, बाउंड्री हिटिंग कर सके, 6 हिटिंग कर सके। And he does not 6 waste balls. He will either ही डजंट score or वेट। he will get out. हाँ हाँ हाँ, Yeah. वो उसकी डॉट बॉल फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। फिर 6 Ah, पे मेरा आ जाता है शादाब, me too. Yeah. एंड 7 वुड बी नवाज देन। Yep. सही है, मैं तो फहीम अशरफ को भी उड़ा लूंगा यार। 8 मेरा फहीम अशरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये Eight मेरा खैर Fahim मैं Ashraf उसे है. नवाज को ऊपर रेट करता हूँ शदाब से चलो, भी, वो बैटिंग में वो भी। एक बट वो ठीक चीज है, है कि 6, 7, 8। तो ये अच्छा, फिर फहीम 9 10 अशरफ। 11 आ गए। अब मैं दोनों उस्मान और इब्रार दोनों को रखना चाह रहा हूं, तो मैं दोनों को रखूंगा। Yep. और फिर Yep. मैं एक एक पेसर मैं प्रोबेबली शाहीन के साथ जाऊंगा आफ्टर टुडेज परफॉर्मेंस। ऑल्दो आई एम नॉट I लाइक put कि भी शाहीन करना ही करना है। अगर शाहीन की जगह मिर्जा को भी रख लेते हो, मैं उसके साथ भी खुश हूँ। मैंने बट मिर्जा को आई रखा आई है. थिंक एक्सपीरियंस वाइज, नाम पेडिग्री वाइज, आज अच्छी थी उसकी बॉलिंग, उसने 2 विकेटें ली हैं। सो बट अगेन, अगर आप कहते हो कि नहीं यार, शाहीन को ड्रॉप कर दो, आई वोंट फाइट विद यू ऑन दैट। शाहीन Yeah. इज I mean, नॉट लाइक, Shaheen's experience we've या seen in the World Cup has not served him well. I mean, he gave up three sixes to Wade. I'm not saying he's bad. I'm just saying I want the more accurate, kind of refined bowler. Maybe he has a little less pace, but I think Mirza is the better one. Yeah, I would choose Mirza over Shaheen. व्हाई आई एम सेइंग शाहीन इज दैट, देखो आपका जो पेसर है, और स्पेशली जो स्पेशलिस्ट आपने पेसर लेना है, उसका वाहिद रोल ये है कि जो पावर प्ले के अंदर उसको 2 ओवर मिलेंगे, उसमें वो 1 Mm. या 2 विकेटें निकाल ले, राइट? फिर तो बाकी तो आपने स्पिनर्स नहीं डोमिनेट करना है ना थ्रू आउट द इनिंग। तो शाहीन का ओवरऑल जो फर्स्ट ओवर के अंदर
या सेकंड ओवर के अंदर विकेट निकालने का रिकॉर्ड है, वो आई थिंक सबसे बेहतर है। आई नो हिस्टोरिकली इतना नहीं रहा, बट आज भी उसने विकेट निकाल ली थी ओपनिंग स्पेल में। तो इसलिए मैं आई एम लाइक सेइंग कि शाहीन को ले जाओ, बट अगर अगर एक मिर्जा को लेके पेसर जाना चाहते हो, खिलाओगे ना तो इट्स प्रीटी इजी शाहीन, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेता है ना। बैटिंग भी कर लेता है। एग्जैक्टली, Yeah, बैटिंग भी आपका। but batting, I mean, look, if you have all these other batters, Shaheen is not going to make a difference. My thing is, if Shaheen's there, you know, whether we like it or not, they're going to make him bowl at the end as well. They're going to make him bowl at the death. And he is not a good death या bowler. डेट He में कोई is a टेंशन नहीं है। very bad death bowler. राग मैं अगर मैं Yes, मजाक नहीं कर Mirza रहा, has मिर्जा proven भी वैसे himself. अच्छा बॉलर नहीं है Mirza डेथ has वो में। proven himself match in, match out. वो नहीं, एशिया कप मिर्जा में डेथ आने में वाला काफी बुरा है वैसे। नहीं मिर्जा उसे को कलंदर्स में बहुत पिटाई हुई थी एंड के वो ऊपर। But I think इवन राणा Shaheen is the बेहतर है worst लोगों for से। me. राणा राणा इन सब में से तीन बेहतर तीन होगा छक्के नहीं वैसे। खाता No, राणा that एंड में। may be अभी the case. अभी ये बीपीएल में एक मैच में Yeah, 9 रन चाहिए थे, पता है? तो उसने हाँ, 5 बॉलें पिला दी थी, लास्ट बॉल छक्का पड़ा है छक्का खा बेचारे गया। को। हाँ, छक्का पड़ लास्ट गया। बॉल पे सिर्फ 9 रन थे। ये लोग तो शाहीन लोग तो 15 रन भी दे देते हैं, रऊफ but और शाहीन यार इनमें yeah, से तो 15 जमान देते बेहतर था। अगर डेथ का ही आपने उस पे से तो ले लो, Shaheen जमान को खान वुड हैव बहुत बीन अ गुड। yeah. सो Shaheen को बहुत मार पड़ती है, हैं। बहुत सारे मार पड़ती है. सब I'm पिटते just I you know I like him and that's fine. यार, लेकिन I बात think वही है ना, Mirza ऑप्शन is a हमारे little पास bit क्या more है? measured. आई ऑप्शन गेस हमारे पास ऑप्शन शाहीन है, नहीं है ना। मिर्जा है, और आपके पास नसीम है। तो Yeah, मिर्जा को भी मैंने Naseem. कलंदर के थ्रू Yeah, काफी मार पीटते देखा है एंड में। ओपनिंग में मिर्जा बहुत अच्छा है, बट वो एंड के भी ऊपर yeah. आई एम नॉट But he श्योर। has matured since then. At the international level, I have not seen him get hit the way he did with Kalandar. So he's matured. Shaheen has all of his experience. फिर भी उसको मार पड़ती है. फिर चले भी he bowls wides and no balls. आई मीन, अगर आप कहते हो But anyway, it शाहीन को doesn't ड्रॉप matter. कर दे, कोई Not ऐसा वो नहीं a है। big deal. दिस वोंट बी हाँ, वो चीज जिसके ऊपर हमारी लड़ाई हो हाँ जाएगी कुछ स्टार्ट। not a big कुछ deal. बड़ा बिग डील। आई थिंक शाहीन नॉट अगर अ बिग डील। No. फिटनेस Honestly, फिटनेस it's का not a big प्रॉब्लम deal. हो रहा होगा तो मुझे लगता है अगर एक पेसर खेलेंगे ना तो नसीम Yeah. में शाहीन ही खेलेंगे, अगर दो हाँ, खेलेंगे तो So सलमान I ही would खेलेंगे। say I would agree with you guys. I would agree with you guys when you're playing minnow teams because the pace of Shaheen will be overwhelming to get early wickets. You want that. I'm okay with या that. अच्छा, एक काफी Yeah. आपको भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में आप सुन रहे होंगे, कुछ लोगों का ये कहना है कि यार वेदर यू लाइक इट और नॉट, बाबर तो खेलेगा ही खेलेगा, राइट? लगता सो यही है। Yes. अगर अगर Yes. अगर इफ दैट इज द केस, तो हम एक टीम बना सकते हैं जिसके अंदर आपने बाबर को ठोसना है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर Yes. आप हु वुड यू टेक आउट फ्रॉम दिस? I भाई have the same thing. Yes. हैसन और आगा ने छोड़ दिया है कि वो कि बाबर खुद ही कमिंस की तरह क्या मैं अनफिट हूं और चला जाए। या Nobody- फील्डिंग के वक्त आ जाए, कैचेस अच्छे पकड़ I रहे, hope फील्डिंग so. के लिए आ जाए। अभी नहीं, मेरे हिसाब से तो अगर नहीं, बाबर को रखना ही है यार, ना, तो यार फिर आप ओपनर ही रख दो यार। मतलब ओपनर वो साइम के साथ अच्छा ही कर रहा है नहीं, पेशावर यार, जर्नी के। no. मतलब है, बाकी नंबर 4 के ऊपर डू यू सीरियसली यार, थिंक कि 4 में उसकी पोजीशन बनती है? वैसे I mean, आज no. फायदा हो गया, I आज put him फायदा at हो गया 5. क्योंकि I put वो him at आउट हो गया 5, था 6 or ना 7. आगा। हाँ, तो आज चलो हो गया, बट आई डोंट नो ओवरऑल। आई मीन, अगर तो यार स्पिन आज की innings भी अगर आप देखा जाए, look at today's innings, right? Let's be clear. He scored 50 of he 30. did not hit a single boundary between overs. Yeah, he did not score any boundaries between the 10th and 20th over. He came in the third over, he left in the 20th over, he scored 50 runs. yeah. अब आप देखो ना, he scored I know 28 runs in his first 17 balls and 22 runs in his last 19 balls. He was Yeah. playing for his milestone. यार I अच्छा mean, प्लेयर है। I mean, वो उसको- basically everyone I would else put around him- him was striking. Everyone else, Nafib was Well, striking, Shadab was Yes. striking, Nawaz was striking. So, यार so this is the thing. इसकी This is not him deferring. This is him. यार आपको याद होगा in the last World Cup, the match against Canada, right? You have this match was on the fringe of we were losing it, and Babar was hiding, and he put Abbas I know. Afridi forward to make him hit the winning runs. The island That's game. not Yeah. how you want your batsman to be. You want your batsman to stand up and say, "Aise ke taise." Kohli would never hide behind other batsmen. He would say, "Move out of the way. I'm going to hit the runs. Score the runs." Babar to chup ke, 50 मारने बस बहुत हो गया. Look, I love Babar. Yeah, I mean, it's नहीं, just plus it's spin, just क्वालिटी इतने- स्पिन आप देखो, क्वालिटी स्पिन वो जो पहले 2 गेम्स में वो बनी बना हुआ था जैम्पा का। आज वाले गेम में जैम्पा वाज इंजर्ड, राइट? जैम्पा डिडंट Yeah. बोल इज फुल कोटा। जैम्पा ने सिर्फ 2 ओवर्स कराए हैं जिसमें 4 या 5 Yes. बॉलें फेस की हैं। सो आई वुड लाइक टू सी कि यार वो क्वालिटी स्पिन को कैसे खेलता है। क्वालिटी स्पिन नहीं खेली जा रही उससे, और श्रीलंका condition- में तो ट्रायल पर स्पिन ही होगी। But we've seen it. We saw against Zampa. हाँ, उसकी अब condition आप देखो ना, उसकी the one thing I would agree, one thing I would agree with Salman Buttface जो है ना, वो जो कहता है कि जो है Babar, they're trying to make him something which he isn't. They're trying to make him hit too much and things like that. And so his mind is very confused. Sri Lanka, I mean, you're going to have spinning conditions. नहीं His करेगा। mind is totally, you saw in the second match against Zampa,
It was a leg रिवर्स break, and he's playing रिवर्स across the line, closing the face of the bat. Reverse इसको sweep the first match, Mita. रिवर्स Second match, स्वीप mate, what are you trying to accomplish closing the face of the bat against a leg break? He doesn't know what he's doing, and he will be found out in Sri Lanka against spin bowling. Like you, I made a team with Babar चलो because I know he's going to be बाबर there को because घुसाओ जरा, PCB किस ने तरह किसको घुसा लिया. निकालोगे? शादाब को ना निकालना, मैंने घुसाया नहीं and तो I कह तो रहे हैं कि नाफे को डाल दो नहीं यार। मैंने फहीम नहीं अशरफ को निकालोगे निकाला तो and किसी I को। नहीं नहीं I kept Fakhar and I put Babar at number 8 because I have seen no other place for him नहीं यार, and I took out Fahim Ashraf. नहीं तो यार, नहीं कोई मुझे Yeah. रियलिस्टिक बात बताओ ना यार, जोक्स ना करो। नहीं seriously, नहीं तो मुझे 9-10 पे भी डालो तो मैं खुश हो जाऊंगा। यार कम ऑन, मैं कोई सही बात है। तुम मजाक नहीं करो, भाई, मुझे देखो, बताओ सच अगर में जगह खिलाना। इतनी देखो अगर 10 ओवर हो अगर गए, इतनी self respect है, he will quit himself. यार अगर 8-10 ओवर हो गए और अच्छा स्टार्ट मिल गया, मत भेजो आप शादाब और नवाज को ऊपर थोड़ा पीछे कर दो। Yes, चाचा भी तो exactly. खेला यार, चाचा यही तो तो मैं कह रहा हूँ 8-9 पे चाचा को भेजो। नंबर 8 पे खिलाया अच्छा, था। वो जो सरफराज का रोल था कि वो फिर आता ही नहीं था हाँ, खेलने के लिए, ऊपर ना नीचे जब करते रहे बस। पता नहीं यार, मुझे तो लोग कह 8-9 रहे हैं पे कि यार सही है। उसको खिलाना ही खिलाना है। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों और कैसे। लाइक अगर आप उसको एशिया कप में आपने ड्रॉप किया हुआ था तो क्यों किया हुआ था? इसलिए किया हुआ था ना क्योंकि आपकी उसकी टीम में जगह नहीं बनती थी। तो अब वो ऑल ऑफ अ सडन इररिप्लेसेबल कैसे हो गया? मुझे बताओ, आने के बाद क्या उसने कर दिया है? शादाब के बारे में भी आपको रिजर्वेशन थी, लेकिन उसने एटलीस्ट आके कुछ किया है। आज की हाँ, इनिंग देखो उसकी, उसने वहां पे मैन ऑफ द Yes. मैच किया। इसने नहीं, वापस जब आने के बाद क्या किया? सो आप देखो ना, when you have someone about whom people are saying कि maybe let him open, then he doesn't know how to open. We saw in PBL he didn't know how to open. अच्छा चलो, Jared Kimber जो cricket for वाला, he said make him come at number 4. He knows how to grab. Then they're saying he doesn't know how to play at number 4. So nobody knows where to put him. नो तो ही आप आके नहीं घुसा बनता लो and see what happens because यार। अगर यही वर्ल्ड कप उसकी नहीं बनती जगह ना। यही वर्ल्ड कप अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आप खेल रहे होते ऑस्ट्रेलिया या खैर अभी बेचारे का बीबीएल ठीक नहीं किया, मगर स्टिल यू नीड Yeah. है। वो आपसे 20 ओवर बैटिंग नहीं होगी Yes. वहां। प्लस Yeah. अगर Yeah. अगर खुदा ना 100%. खास्ता रेन कंटेल्ड गेम्स हो गई ना कुछ, जिसके चांसेस हो सकते हैं, अल्लाह ना करे हाँ, हो, बट क्यों बारिश काफी होती है, फिर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा ना बाबर का। क्योंकि अगर 15 ओवर का नहीं है। गेम है तो फिर आपने तो स्ट्राइक करना है फ्रॉम बॉल 1। आपको तो हिटर्स चाहिए सारे के सारे, तो एंकर का तो वैसे ही रोल खत्म हो जाता देखो, है। it's a combination of where his mental space is right now, his skill set, and the conditions in Sri Lanka. You know, if I was choosing a test team, he'd be my number 1 player. If I was choosing an ODI team, he'd be my top 2 or 3 players. In T20s, nahi banti hai jagah. I just don't see it. अगर आप But I'll put him at 7 or 8 if he has ऑनेस्टली to play. देखो ना, तो कहीं पे भी टेस्ट में भी रन नहीं हो रहे यार। ऑल्दो जो आप हेड स्पेस की बात कर ठीक रहे है, हो, but you know, you have that. इंटरेस्टिंगली उसकी फील्डिंग अफेक्ट नहीं हुई। उसकी उस वक्त वो सारे कैचेस पकड़ है। इनफैक्ट उसकी फील्डिंग काफी अच्छी हो गई जब से वापस आया। वो स्लिप्स में भी उसने बड़े अच्छे हाँ. कैचेस पकड़े थे एशिया कप में एंड व्हाटएवर। तो चलें, हमने कर लिया। अब लास्ट बात पे आते हैं। लेट्स ट्राई। अब 10-15 मिनट्स रह गए हैं। द बिग न्यूज, पाकिस्तान बायकॉटिंग द इंडिया गेम। इज इट द राइट डिसीजन टू टेक? क्या कहोगे इसके बारे में फर्स्ट, और फिर हम आगे बात करते हैं। मिस हो गया, फ्रीज हो गई थी इसकी। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर That's देता हूँ। okay. क्वेश्चन मेरा यही था कि लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान गवर्नमेंट डिसीजन टू बायकॉट द इंडिया गेम। क्या कहेंगे आप? डू यू सपोर्ट दिस? यार मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। एक बात बताओ, जब जाने से पहले इन्होंने श्रीलंका में इतनी अच्छी डील करवाई कि भाई इंडिया श्रीलंका आएगा, पाकिस्तान जाएगा ही नहीं। जो मुझे समझ आ रहा है कि सेमीफाइनल भी खेलेगा, फाइनल भी खेलेगा, तो थोड़ा लेट लग रहा है मुझे। अगर ये पहले करना था तो ये इतनी इतनी अरेंजमेंट क्यों करवाई थी? मुझे याद हो तंग कर रहे हैं। इंडिया को नहीं जाना चाहिए अगर वो, दैट मेक्स मोर सेंस। मगर इंडिया ने आज तक बायकॉट नहीं किया, वो खेल ही रहे हैं पाकिस्तान से ना, इंडिया न्यूट्रल। क्यों अपने 2 पॉइंट्स हमें देगा? तो पाकिस्तान खुद छोड़ा। नहीं, मगर इंडिया खेल ही रहा है ना। वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी आए खेले, तो पाकिस्तान ने न्यूट्रल की तो डील ली हुई थी ना। दैट वाज नॉट बैड कि आप श्रीलंका में इंडिया को बुला के खिलवा रहे हो उनके घर से बाहर। तो दैट वाज इनफ विन। तो मुझे नहीं समझ आया, थोड़ा लेट हो गया। पहले कर देते, अब इतने एंड टाइम पे आपने टीम अनाउंस कर दिया, तो थोड़ा अनप्रोफेशनल है। अगर आपको करना था तो पहले करते। पहले किस पॉइंट पे करते? मतलब बात तो स्टार्ट ही Well, तब हुई थी ना जब बांग्लादेश के उसके बाद से ही स्टार्ट हुए थे मसले। मगर अभी उससे रीजन नहीं दिया ना, रीजन नहीं दिया। हाँ, अगर ये रीजन अभी तो सिर्फ ट्वीट आई है, देयर इज नो रीजन। अगर बांग्लादेश बोलते हैं या कोई बलूचिस्तान का बोलते हैं तो फिर शायद हाँ उसकी सेंस बने। अभी मुझे नहीं समझ आया कि रीजन क्या है। आसिफ, देखो, आप I personally think that
cricket has been played at an international level for nearly 150 years, right? And it's been 40 plus nations that have been playing over all this time. And there's a basic level of decency and sportsmanship that people show. And India is the one who started the Bunga. They're the ones who decided we're not going to shake hands. They're the first ones who injected politics into this. And, if you disrespect us on the field, then I don't, they're bullying their way into everything. Plug there. So that's my thing. Now, हम चाहिए भी हैं उनको रेवेन्यू के लिए bear in और mind, हाथ भी नहीं मिलाना. हम चाहिए भी हैं कि हमारे बगैर उनका आईसीसी टूर्नामेंट नहीं होता. हम चाहिए भी you उसी can't have your पूल में cake हैं. and eat it too. Yeah. So bear in mind that, and thank you. I would say that, look, this would not have happened had we not had the military conflict earlier and we not shot their planes down. They are so butthurt by us knocking their planes down that they cannot reconcile that. And this is a long injury that is sticking with them. If they had knocked our planes down, none of this would be happening, right? Let's just call a spade a spade. That is what it is, right? This is not unprecedented, right? You've had India refusing to come to Pakistan for the Champions Trophy. You had in '96 West Indies and Australia refused to go to Sri Lanka. They gave up the points. In 2003, England refused to go to Zimbabwe, I believe. So this is not unprecedented. This is not that the whole world is going to fall apart. Now, India, it's ironic that they say we're such an insignificant team, we're not important. They're having a major meltdown over there about this. Give us the points. It's harder for us to qualify for the semifinals. It's harder for us. So why are they having a heart attack? You're the ones who started the Bunga. You're the ones who are not shaking our hands. So, we have, as a nation of people who have dignity and self-respect, we're going to stand up for it. And yes, we know we're going to pay consequences, but at a certain point, enough is enough. Why should we take this crap? Now, this is the only leverage we had. Something I read today, 63% of all the ICC Global Tournament revenue comes from India-Pakistan matches. That is the only leverage that we have. Now, unfortunately, India in and of itself contributes 70% plus of all of their revenue. So we're going to have consequences, but we're prepared to handle it. Pakistan is a big brand. So it's not like Bangladesh, no disrespect to them, where you can just marginalize them and knock them out. We're still going to be playing. We're still going to England next year to play a test series. If they end up dropping us altogether from the World Cup, I don't think that's a price that is too heavy to pay, because at a certain point you have to stand up for yourself. Otherwise bullies will keep bullying, right? We know that Australia and New Zealand and England, they feel this as well. They're just too scared to say it out loud. They know who's buttering their bread, right? But at a certain point, you have to stand up for yourself. And I think that's totally fine what Pakistan's doing. TK, there are going to be consequences. That's fine. But it is what it is. I'm totally behind this decision. मैं अगर मिर्जा की जो बात करूं उसकी तरफ भी आई कैन सी वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम एज वेल कि अगर आप ऑन पेपर देखो तो आई डोंट रिमेम्बर इन रीसेंट हिस्ट्री रीसेंट पास्ट कि हमें कोई इतनी अच्छी डील मिली हो इन द सेंस के स्पिन ट्रैक्स हैं, हमारा स्पिन इज डूइंग ग्रेट, हमारे पास इजी पूल है, रिलेटिवली इजी पूल, प्लस जब हम जाते हैं सुपर 6 में, सो हम विल बी मीटिंग श्रीलंका, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड. Australia, India, and South Africa are seeded to be in the other pool along with West Indies. So, उस एंगल से देखा जाए तो हमें एक तरह से कंडीशंस, एक अच्छा पूल मिला है. सो अब जाहिर है हमें सैक्रिफाइस तो हम कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करने की. वी कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. कोई हमारी एक गेम रेन मतलब की वजह से वॉश आउट हो गई अगेंस्ट नेदरलैंड्स या व्हाटएवर, या अब नेट रन रेट की हमें पेनल्टी पड़ेगी उसकी वजह से, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि जी इंडिया जानबूझ के नेदरलैंड से हार जाता है या कुछ, तो हम उससे भी निकल सकते हैं. सो वो चीजें तो हैं. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सैक्रिफाइस तो हमें देना पड़ेगा इस टूर्नामेंट में भी और हो सकता है लॉन्ग टर्म में भी. बट अगेन लाइक डू यू लेट इट कीप ऑन हैपनिंग लाइक दिस, या एक दफा आप एक हिट ले लो कि ताकि आप अपना स्टैंड एक ही दफा दे दो कि भी ठीक है, ये इस तरह बात नहीं चलेगी. I think Mudassir's point is right in that Pakistan should, why now? Pakistan should specify is the reason, right? If they say it's a handshake or the Bangladesh thing, then this is a little. If they say this Balochistan thing happened, then they have to, say this is why. Just that Pahalgam was India's reason, right? So we have to be able to. This is where communication comes in. Our PCB has got to do a better job at PR. Hopefully they will, unless they start, panicking and thinking we've gotten ourselves too deep. Now that you made the decision, you have to stick with it and give your supporting evidence and say why. That's where I agree with Mudassir. मसला इन्होंने सॉल्व कर लिया था ना, वो जब इतने वो हैंडशेक का मसला ये सब हो रहा था,
तो बड़ी अच्छी डील ली थी कि भाई हम भी इंडिया नहीं जाएंगे चाहे, तो मसला सॉल्व वो खत्म हो चुका है वो, कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम हर चीज श्रीलंका खेलेंगे, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए था। अभी ये कि अब ट्वीट भी इतनी अजीब है कि पाकिस्तान इज प्लेइंग वर्ल्ड कप, वी आर नॉट गोना प्ले ऑन 15, या मूड नहीं है भाई हम लोग का, दफा हो यहाँ से तो अब होप के भाई कुछ एक्सप्लेन तो करो कि क्यों नहीं खेल रहा। एक एटलीस्ट अच्छी चीज है कि the उन्होंने other, गवर्नमेंट ने ट्वीट निकाली है, पीसीबी ने हाँ, नहीं निकाली, किसी भी ना you know। प्लेयर्स ने निकाली, तो हाँ कि इंडियन भाई, टीम बोलते थे क्योंकि इंडिया ये यही वाली। कहता है ना यार, हमें गवर्नमेंट से हाँ इजाजत नहीं मिल रही, हमें गवर्नमेंट से इजाजत नहीं मिल रही, तो हम भी अब कह सकते हैं हमें गवर्नमेंट से इजाजत नहीं मिल रही, हम हाँ, क्या कर वो सकते होगा हैं। तो यही, मगर आईसीसी तो पूछेगा ना कि रीजन क्या है, जो कि रीजन क्या है। जो जो वो पूछता हाँ, रहे, क्योंकि लेकिन आप सलमान ने भी यही गवर्नमेंट के कहा था पाबंद कि होते हो ना। गवर्नमेंट सही है तो मैं क्या हाँ कर सकता हूँ. हाँ। But I think one other thing that is looks bad optics wise is this is the same day Pakistan under 19 was playing India under 19 in the under 19 World Cup. Yeah. So if they do this, we probably should not have played that match as well. To हम्म। make this announcement on a day when we're playing India, that पता है doesn't पता है click. मेरे ख्याल से But दे वर वेटिंग फॉर द whatever. It is what it ऑस्ट्रेलियन, is. आई थिंक दे वर वेटिंग फॉर द ऑस्ट्रेलियन सीरीज टू बी ओवर, बिकॉज ये अगर ऑस्ट्रेलियन सीरीज आज के मैच स्टार्ट होने से पहले अनाउंस कर देते ना, Uh-huh. तो हो सकता Uh-huh. था इंडिया प्रेशर डालता ऑस्ट्रेलिया पे, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को कहता है, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड कहता है कि जी हम फिर आज के गेम से पुल आउट कर रहे हैं, और वो बड़ी बदमज़गी हो जाती कि हमारी जो आखिरी जो गेम थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो शायद ना हो पाती। तो दे हैड टू वेट फॉर दैट सीरीज टू बी ओवर। ऑस्ट्रेलियन सीरीज खत्म हो गई है, अब ये नहीं हो सकता कि बीसीसीआई कॉल करे ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को और उनको प्रेशराइज करे कि जी तुम ये इस चीज को वापस लो वरना हम अभी पुल आउट कर रहे हैं अपनी टीम। तो आई थिंक उस ड्रामे से बचने के लिए Mm. शायद दे वेंट अहेड एंड प्लेड द अंडर 19 गेम। अच्छा, तो इसका अब एक तो शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। अब अभी तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार दिस इज नॉट अ Yeah. फाइनल डिसीजन, हो सकता है कि जी कुछ चेंज भी हो जाए, आई डोंट नो, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि आईसीसी, आपने देखा होगा, उसने कहा है कि जी वी विल negotiate and we want the PCB to reconsider and let's come up with a mutually acceptable outcome. I don't know what mutually क्या acceptable आउटकम, is। क्या करेक्ट। क्या दे सकते हैं हमें, what do we want, अब क्या दे सकते हैं Yeah. ऑलरेडी। I mean, they have given us श्रीलंका, and plus हमारा सेफ्टी का तो इशू ऐसे भी नहीं है ना कि हम कि जी वी आर नॉट सेफ इन इंडिया। तो आई डोंट नो हमें क्या दे सकते हैं वो इससे ज्यादा। अनलेस कि वो बांग्लादेश को वापस लाएं Yeah. वर्ल्ड कप में, और हाँ अगर इसलिए There's, किया तो फिर I don't think there's any वो आ going जाएगा, back. बांग्लादेश शायद आ हाँ जाए वापस, वो करना आना भी चाहिए, तो वो शायद हाँ, तो वही। लेकिन वो फिर जो 14-2 का वोट पड़ा हुआ है, तो फिर बाकी नेशंस क्या कहेंगे, वो 14-2 से तो उन्होंने उसको शूट डाउन कर दिया बांग्लादेश को, तो बाकी द हाँ. लाइक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो और इंग्लैंड क्या पाकिस्तान कहेंगे। ऑब्जेक्ट कर रहा है ना, तो यही इसी पे ही मसला उठा सकता है, और तो मुझे नहीं समझ आ रहा। तो फिर इस पे स्कॉटलैंड को क्या कहेंगे, टाटा, There's no हमने वापस going आपको back कहा from था this वापस with वापस जाओ, India. या गो बैक। या दोबारा वोटिंग हो Mm. पाकिस्तान, और कर सकता है पाकिस्तान, पता है अगर पाकिस्तान अड़ जाए तो शायद बांग्लादेश आ जाएगा वापस। तो फिर आपका मतलब है कि ये बांग्लादेश की वजह से किया उन्होंने मेरा ख्याल अभी। से और I कोई think it's लॉजिक ही नहीं unlikely. है, क्योंकि पहले करना था ना, अब इतना लेट आप कर रहे हो, तो मुझे नहीं समझ आई नहीं, क्योंकि लॉजिक। अगर बलूचिस्तान की वजह से कर रहे हो तो फिर तो नेगोशिएट करने का कुछ बचा Okay, ही नहीं so है here's फिर। the other तो वही फिर ना, scenario. क्या। तो देखो क्या होता है, हो सकता है, बस मुझे लगता है कि या तो ये चाह रहे हैं कि इंडिया से जान छुटे आईसीसी ना, इट शुड गो बैक टू इंग्लैंड और सम न्यूट्रल कंट्री, क्योंकि जब से ये बीसीसीआई इन्वॉल्व हुआ है Yes. आईसीसी में, तो बहुत Yes. गन मची हुई है। जैसे गिलिस्पी ने बोला है कि यार दे शुड नॉट बी अरेंजिंग टूर्नामेंट्स, तो कोई एक आध कोई बोल दे, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड Yeah. का पुराना, Agreed. कि भाई ये यहाँ से इनसे लो एडमिनिस्ट्रेशन, वापस ये लड़ते ही यार वो रहते हैं। तो लेकिन रोटेशन नहीं होता, वो तो अभी जय शाह है, जब उसका टेन्योर खत्म So होगा तो let कोई me और बन जाएगा। वोट तो हो सकता है मेरे ख्याल से कभी भी। हाँ जी, आसिफ आप बोलो। हाँ, yeah, I think this never happens this never happens anywhere else या usually. So maybe हमारे ये कि they'll see this and say India should not host in future. I have a question कि जो है, if this is because of Balochistan and we don't play, first करो we advance to the next round, we cannot play India in the semis, but if we have a final against India, it's the same reason. Do we boycott that as well? I mean, what आई हम्म। गेस, happens? That's अगर huge leverage. That's आई huge गेस अगर leverage. 15 को छोड़ेंगे तो देन दे हैव टू बॉयकॉट अगेन। Boycott the final. या या विच वुड मीन कि I mean, फिर तो principle is आईसीसी का principle. फिर तो या आईसीसी का इंटरेस्ट होगा कि भी अगर ये बात है तो फिर पाकिस्तान आगे जाए ही ना सुपर 6 में, क्योंकि अगर पाकिस्तान, फिर तो उनका या ये इंटरेस्ट है ना, क्योंकि अगर उनको मगर जो कैश, पाकिस्तान ने कैश हाँ. का ही मार दी, उनकी गोल्डन एग जो देती है वही मार दी अगर, तो फिर तो उनको होगा कि भी आगे भी तुम ना जाओ, फिर आगे तुम हमें तंग करोगे, सेमीफाइनल में तंग करोगे, फाइनल में But तंग करोगे। it's a lot harder to bully a World Cup finalist. That's I think. देख
देखते हैं यार, अभी मुझे लगता है और अब देखो ना, क्लैरिफाई होगी we चीजें beat it. कई I जाके। think even beating Australia 3-0 has given us a little bit more gravitas, you know? या We're not a bad team. We're a top हम्म, level team, you know, top 5, 6 team. Beating Australia 3-0, now countries will take notice and say, look, it's hard to, you know, to drop such a top level team out of the World Cup. It's not that easy. You know, आई थिंक देखो, if आप we're out, if we're या out, then it's Uganda. India will play Uganda in Ahmedabad with 132,000 people. Is that what they हाँ। want? You know? नहीं आई खैर, थिंक हम तो अभी पूरा टूर्नामेंट से तो निकलने की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इंडिया के बॉयकॉट की बात कर रहे हैं। No, but if बट they punish us by knocking us out of the whole thing, which log India mein log keh rahe in the midst of their huge meltdowns, they're saying that as well. अच्छा, कि टोटली निकाल दो। हाँ, मगर ये कि अब रैंकिंग अपडेट होगी ना, तो मेरे ख्याल से चौथे पांचवे पे आ जाएगी पाकिस्तान अब 3-0 वाइट वॉश के बाद। हम्म। हाँ, हाँ, हम्म। yeah. अच्छा, दूसरा अपने व्यूअर्स के लिए कि इसकी जो टूर्नामेंट में इम्प्लीकेशंस वो हैं, अगर लोगों को क्लियर नहीं है, वो ये हैं कि पॉइंट्स तो हम फोरफिट करेंगे ही करेंगे। एंड सम ऑफ यू माइट आर्ग्यू कि वो तो हमें, अगर हम ऑड्स पे जाएं तो मोस्ट लाइकली हमने, गिवन रीसेंट हिस्ट्री, शायद हम हार ही जाते हैं इंडिया से। तो दैट्स नॉट अ बिग थिंग। बट द अदर बिगर थिंग इज कि हमारा नेट रन रेट उससे विल टेक अ हिट, बिकॉज हमारे जितने रन हम बनाएंगे इन 3 गेम्स, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 4 गेम्स, एसेंशियली 80 ओवर से डिवाइड हो जाएगा। तो अब उसका मतलब ये है कि हमें बाकी जो है मैचेस, एक तो हमें दुआ ये करनी है कि वो बारिश ना हो, बिकॉज एक भी उनमें से गेम वॉश आउट हो गया तो लग जाएंगे हमें लेने के देने। और दूसरा ये है कि हमें अपनी बेस्ट टीम खिलानी है, ताकि डोमिनेट करना है हमने, ताकि हमारा नेट रन रेट थोड़ा सा अच्छा हो जाए। बिकॉज Mhm. अगेन, I was sharing the schedule with some of you on a WhatsApp group today कि 18th फेब को हमारा आखिरी गेम है इन द मॉर्निंग नेदरलैंड के साथ, और फिर लेटर इन द डे हमारे गेम के बाद इंडिया का आखिरी पूल गेम है अगेंस्ट नेदरलैंड। सो बाय द टाइम द इंडिया नेदरलैंड गेम टेक्स प्लेस, इंडिया वुड नो एग्जैक्टली कि पाकिस्तान का नेट रन रेट कितने पे खत्म हुआ है। सो इफ दे वांटेड टू प्ले डर्टी विद अस, Who are we playing? वी आर प्लेइंग नमीबिया इन द मॉर्निंग। आखिरी गेम की बात कर रहा हूं, द थर्ड Namibia. गेम। Namibia. Okay. तो हमारी जो आखिरी Huh. पूल गेम है नमीबिया के साथ है 18th फेब को इन द मॉर्निंग, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद लॉक हो जाएगा कि हमने अपने पूल के ऊपर नेट रन रेट किस स्किप पे क्लोज किया है। उसके बाद जब मैच खत्म हो Hmm. जाएगा, उसके बाद शुरू होगा इंडिया वर्सेस नेदरलैंड। सो इंडिया वुड नो एग्जैक्टली कि पाकिस्तान का नेट रन रेट कितना है, नेदरलैंड का नेट रन रेट कितना है, और उनका तो मोस्ट लाइकली अच्छा होगा ही होगा। तो इफ दे वांटेड टू प्ले डर्टी, दे कैन डिलिबरेटली लूज फ्रॉम नेदरलैंड इन सच अ वे कि इंडिया खुद भी क्वालिफाई कर ले और सेकंड नंबर पे नेदरलैंड को क्वालिफाई करवा ले नेट रन रेट की वजह से। पहले भी कर चुके हैं वो, जो स्टोक्स, वो जो इंग्लैंड में क्यों जो हाँ, हारे बट थे, अब और आसान इसलिए हो दोबारा जाएगा ना, कर देंगे। बिकॉज हमारी नेट रन रेट तो वैसे ही विल Hmm. टेक अ हिट। हाँ, अब और आसान वो इसलिए हो पहले जाएगा कि भी हमारी, ओडीआई में भी कर चुके हैं, तो वो हाँ तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो वो उसकी वजह से हमें अपने इंटरेस्ट को सेव गार्ड करने के लिए अपनी नेट रन रेट को, जो 3 हमारे पास गेम्स हैं उसमें ये नहीं करना कि सिर्फ 10 रन से जीत गए, 15 रन से जीत गए, 20 रन से जीत गए। हमें टारगेट करना है कि 70-70-80, जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, 100-100 रन से हराया है, इस तरीके के मार्जिन से हराने की कोशिश करनी है, ताकि So, इंडिया वो गेम ना खेल सके नेट रन रेट वाली। is this a new rule? It goes as us being 0 all out against India in 20 overs. I mean, is that's essentially what it amounts to, है ना? या आई मीन आई डोंट नो कि पहले टूर्नामेंट्स में था कि नहीं था, लेकिन अभी क्रिक इन्फो ने I don't इस think वाले so. टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में तो क्लॉज पढ़ाया हाँ. है, जो टूर्नामेंट में ये कह रहा है पता कि, नहीं, अच्छा. अभी अंडर 19 का देखो यार क्या किया, अभी समझ नहीं आया वो तो बाहर। No, बहुत ही no. घटिया, बहुत ही घटिया वो तो No. फॉर्मेट था, But again, सेंसलेस। for that to be enforced, the Indian team has to come to Sri Lanka. यस They have यस to do their pre-game press conference. They have to get on the field, यस, and then the team has to, या the umpire has to देन say द match is रेफरी हैज टू canceled. वेट फॉर अस फॉर हाफ एन आवर। Yeah. एंड Okay. हाँ, तो वो सारी नकवी चीजें। नकवी को भेज I think it's worth it. दे। I think it's worth it. अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि सपोजिंग बारिश हो गई उस दिन और वॉश आउट हो गया गेम। फिर पॉइंट मिल जाएगा एक। Yeah, then we can say हम तो तैयार थे खेलने के लिए, हम तो तैयार थे you know? तो हम। यार, तो अभी क्यों किया फिर? वो मैच से पहले नहीं आता जिस तरह वहां नहीं आ रहे थे एशिया कप में, और शोर लगता Yeah. फिर। हाँ, so I don't know, अब पहले बताने का, was it, do you think it was a wise decision to tell right now
या वी शुड हैव जस्ट डिस्क्लोज ऑन द डे ऑफ द नहीं नहीं इवेंट, नहीं, उनको पहले सस्पेंड क्यों बताना रखा? होता है, जितना आप डिले कर रहे हो उतना प्रॉब्लम हो नहीं, रहा है। जितना आप डिले कर रहे हो तो वो जिस तरह वो बात करें कि वो Yeah. युगांडा को रख सकते हैं हमारी जगह, तो उस वक्त तो ना रख सकते हैं ना आप, आखिरी आप 15 फरवरी को भी नहीं, युगांडा को रख सकते हैं। वो फाइनेंशियल लॉस ज्यादा होते हैं ना इनमें, चीजें तो अरेंज हुई हुई डोंट यू वांट मोर लेवरेज देन, डू यू वांट मोर फाइनेंशियल, तो फिर एंड में रखो, उनको मैक्सिमम दो, फिर नुकसान अभी से बताने की क्या जरूरत थी? नहीं। पता नहीं यार। लेकिन ये है कि अभी आपको अगर तो Yeah, I आपका think आपका we इरादा don't था, know the अगर आपका अभी लेवरेज रीजन लेने का, रीजन मुझे नहीं पता, सेंस तभी बनेगी कि अगर बांग्लादेश का हाँ मसला हो, और आई थिंक इट माइट इवन वर्क आउट, अगर बांग्लादेश पे स्टांस लिया है तो इट्स अ गुड स्टांस, और वो वापस आ भी सकता है बांग्लादेश। हाँ आई थिंक अगर बांग्लादेश को वापस ले आए तो विन विन हो हाँ, जाएगा, ठीक है, फिर खेल लो, फिर बांग्लादेश भी सही है। खुश, फिर भी खुश, फिर हम भी अगर इस खुश। पे लिया है तो सेंस बनती है, बाकी तो मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों किया। I हाँ think Balochistan की वजह से, because that just हाँ, happened वो भी, yesterday. मगर फिर That timing दे हैव wise. टू से इट राइट। बलूचिस्तान में Yeah. तो मैं वही कहता ना कि इससे बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, पाक कुछ नहीं किया बलूचिस्तान में तो जाफर एक्सप्रेस भी हुआ था, वो जाफर सारा कुछ एक्सप्रेस हुआ में है। कुछ नहीं किया यार, वो तो Yeah. इतना बट बुरा बात वो है कि इंसिडेंट अगर तो आपने बलूचिस्तान पे किया है तो फिर तो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू नेगोशिएट देन ना, फिर है। हाँ नेगोशिएट फिर क्या तो करोगे? हाँ, वो तो फिर तो निगोशिएट भी नहीं खत्म, कर वो जो सकते। बात करेंगे लेट्स फाइंड आउट म्यूचुअली एक्सेप्टेबल, हाँ, फिर तो Yeah. बात रहती कुछ नहीं है। या तो अगर बांग्लादेश का ही अगर चक्कर है। बांग्लादेश पे किया है तो फिर बात की जा सकती है कि जी बांग्लादेश को वापस लेकर, Unless they, अनलेस व्हाट। so अगर बलूचिस्तान पे हुआ, they might say if the Indian government apologizes to Pakistan, then we'll play. But that's never नहीं, happening. वो भी नहीं, You वो know. तो नहीं हो सकता ना कुछ। मोदी सुना है वो I एप्स्टीन know, but you फाइल्स में know, उसका नाम निकला है मोदी का कि yeah. वो डांस कर रहा था या कुछ, तो मैं ख्याल है वो एक ये शर्त ये हो सकती है, Dancing. हमें भी He was डांस दिखाए dancing मोदी। in Israel. या तो एक शर्त हाँ ये हो सकती है, हमें भी नाच हाँ दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल। चले जी, मेरे ख्याल है इजाजत मांगते हैं अपने हम्म नाजरीन से, तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से बिल्कुल पहले, बिफोर द नेदरलैंड्स गेम, हमारा इरादा है कि अगेन हम आएंगे और प्रीव्यू करेंगे उस मैच को। लेट्स सी, इट्स अ वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन, सो हु नोज अगले अगले 4-5 दिनों में ये ऊंट किस तरफ बैठता है, बिकॉज ये अभी न्यूज आई है, एंड अगले 2-3 दिन काफी इंटरेस्टिंग होंगे, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम्म बहरहाल एज फार एज इस चीज को हटा दें तो टीम को अगर हम देखें तो द टीम इज लुकिंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेशली फॉर द कंडीशन दैट श्रीलंका की हैं, एंड वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक इंशाल्लाह, द टीम शुड डू वेल, इंशाल्लाह आगे जाए ग्रुप 6 में, एंड अच्छा रिप्रेजेंट करे। सो स्पेशली जिस तरह आसिफ ने बात की थी कि हम काफी अरसे से बात कर रहे थे कि यार स्पेशलिस्ट स्पिनर्स लाओ, एक टाइम था कि अबरार के लिए हम कहते थे यार अबरार को लाओ लाओ लाओ, उस्मान तारिक के लिए आवाज उठाई, सो अब अल्हम्दुलिल्लाह इट टुक टाइम, बट द स्पिन डिपार्टमेंट लुक्स गुड, बैटिंग भी रिसेंटली थोड़ी सी हो गई है, यस देयर आर फ्यू क्वेश्चन मार्क्स बाबर आजम की इंक्लूजन फॉर इंस्टेंस, बट ओवरऑल वी आर हैप्पी। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड we'll see you next time. Thank you very much.